हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मैं प्रियांशु और हम यूपीएससी के मॉक टेस्ट सीरीज में जीएस पेपर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने सेक्शन बी में केस स्टडीज की चर्चा शुरू की है और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक के 3 केस स्टडीज को देखा है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को डिस्कस करेंगे। केस स्टडी सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 10 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? So Ratna is a 38-year-old senior manager. So Ratna, she is 38-year-old and she is a senior manager in a rapidly growing startup. She is a senior manager in a rapidly growing startup specializing in skin care makeup products. So she specializes in skin care makeup. So the startup specializes in skin care makeup products. Okay. The company founded in 2020. The company has been founded in 2020. Has gained popularity for its eco-conscious branding. Its eco-conscious branding. It means that it follows environmental standards. It claims to follow the environmental safeguards in its product and its production processes. So eco-conscious branding targeting millennials with a promise of clean, cruelty-free and sustainable cosmetics. So clean, cruelty-free and sustainable cosmetics. The company's latest flagship product, a premium face scrub called Glow Pure. So it is a particular product of the company and it is the flagship product, the main product which the company is showcasing in the market. A premium face scrub called Glow Pure has been a massive success. Okay, contributing rupees 10 crore to the company's revenue in 2024 alone and creating 200 local jobs through its supply chain. Okay, so there is a particular flagship product of the company. The company has branded itself as a eco-conscious company and this particular product has been a very big success, contributed to rupees 10 crore revenue in the past year 2024 and also created 200 jobs through the supply chain. However, the senior manager overseeing product development and compliance. So Ratna is senior manager. It is her duty to oversee the product development and compliance. Ratna is facing a troubling issue. She is facing a troubling issue. So this product Glow Pure, it contains microplastics, polyethylene microbeads. We know that these microplastics are used in the cosmetic products, in makeup items, cosmetic items, है ना। और खासकर जो स्किन एक्सफोलिएशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि चेहरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो उसमें खासकर इनका इस्तेमाल माइक्रोप्लास्टिक्स का एक्सफोलिएशन पर्पस के लिए किया जाता है। सो दिस प्रोडक्ट Glow Pure, it contains microplastics, polyethylene microbeads at a concentration marginally exceeding the regulatory threshold. So it is just marginally exceeding the regulatory threshold concentration. बहुत थोड़े से मार्जिन से एक्सीड कर रहा है उसमें जो माइक्रोप्लास्टिक का कंसंट्रेशन, जो परमिसिबल कंसंट्रेशन है। दिस वायलेशन दो स्मॉल, सो दिस इज अ वायलेशन एज इट इज मार्जिनली एक्सीडिंग द रेगुलेटरी लिमिट्स, दो स्मॉल could lead to penalties. Now it could lead to penalties and damage the company's reputation. So it can damage the company's reputation as an environmentally responsible brand. भले ही वायलेशन छोटा हो पर कंपनी के रेपुटेशन को हिट कर सकता है। The issue surfaced during an internal audit. So there was an internal audit and safety team's analysis confirmed the presence of polyethylene microbeads. So it confirmed the presence of this particular microplastic used for exfoliation. Now these microplastics, when they wash off, pass through wastewater treatment system. Wastewater treatment system भी उनको hold नहीं कर पाते and they get through the wastewater treatment system and pollute एक्वाटिक इकोसिस्टम और फिर जाकर वो एक्वाटिक इकोसिस्टम को पोल्यूट करते हैं। सो माइक्रोप्लास्टिक्स आर लिंक्ड टू हेल्थ रिस्क्स. सो माइक्रोप्लास्टिक्स दे आर लिंक्ड टू हेल्थ रिस्क्स. नाउ सी, दे आर लिंक्ड टू हेल्थ रिस्क्स इंक्लूडिंग एंडोक्राइन डिसरप्शन एंड कार्डियोवास्कुलर इश्यूज. इससे जो स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा होती हैं, इंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, हृदय रोग संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. क्यों हो सकती हैं? As they absorb toxic chemicals and accumulate in the food chain.
absorb toxic chemicals and accumulate in the food chain, affecting marine life and human consuming seafood also. तो न केवल मरीन लाइफ को प्रभावित करती हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनको खाने वाले जो मरीन जो फूड है उनको खाने वाले लोगों को भी, मनुष्यों को भी प्रभावित करती है. ठीक है. अच्छा, नाउ रत्ना फेसेस अ कॉम्प्लेक्स एथिकल इशू सिचुएशन. सो रत्ना, she faces a complex ethical situation. The company's CEO is unaware of the violation. कंपनी के जो CEO है unaware of the violation as the product was fast tracked. Now the product was fast tracked to meet market demand during the festive season. Reporting the issue to the regulators could lead to a recall. If you report the issue to the regulators, it can lead to a recall of the product, causing immense financial losses to the company, layoffs of employee and reputational damage. अगर मान लीजिए, अच्छा, कंपनी के सीईओ को पता नहीं है क्योंकि फेस्टिव सीजन के दौरान मार्केट डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्ट को फास्ट ट्रैक किया गया था, तो कंपनी के सीईओ को इस प्रोडक्ट के इस मार्जिनल वायलेशन का पता नहीं. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अगर रेगुलेटर को यह मैटर इशू किया जाता है, बताया जाता है, तो इससे उस उत्पाद का बाजार से वापस बुला लेने की का खतरा बढ़ता है. कंपनी को इमेंस फाइनेंशियल लॉस होगा, एम्प्लॉइज की नौकरी जाएगी और रेपुटेशन का डैमेज होगा. सो अलग. सो इट कुड ऑल्सो जेपार्डाइज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए रेप्यूटेड वेंचर कैपिटल फर्म. सो देयर हैज टू बी सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए रेप्यूटेड वेंचर कैपिटल फर्म. और इस तरीके का मामला अगर बाहर आता है तो वो फर्दर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित हो सकता है. So such investment insists on compliance with global sustainability standards. और वो जो फर्म है, जो ग्लोबल वेंचर फर्म है, वो किस पर इंसिस्ट कर रहा है? कंप्लायंस विथ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पे. अगर वो स्टैंडर्ड्स पालन नहीं किए जाते हैं, ऐसा पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में वो स्टैंडर्ड्स पालन नहीं किए गए हैं, तो हो सकता है कि वो रेप्यूटेड वेंचर फंड जो वेंचर इन्वेस्टर है वो पैसा निवेश ना करे. However, concealing the violation, it risks harm to consumer health. कंज्यूमर हेल्थ का नुकसान होगा, एनवायरमेंट का भी नुकसान होगा, और साथ ही साथ इट में अट्रैक्ट लीगल एक्शन एंड पब्लिक बैकलैश ऑल्सो इफ एक्सपोज्ड बाय एनजीओ. अब किसी न किसी एनजीओ की खबर की नजर पड़ेगी, कहीं ना कहीं बात वो खबर में आएगा, और इससे फिर ये सभी समस्याएं, बैकलैश, ये सब हो सकता है. द प्रोडक्शन टीम ऑफ द कंपनी आर्ग्यूज दैट मार्जिनल एक्सेस इज नेग्लिजिबल. कि जो मार्जिनल एक्सेस है वो बहुत मामूली है, नेग्लिजिबल है, एंड सजेस्ट रिफॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्ट ग्रेजुअली ओवर 6 मंथ. और वो कहता है, जो प्रोडक्शन टीम है, कि हम इसको समय के साथ धीरे धीरे 6 महीने के अंदर ग्रेजुअली रिफॉर्मुलेट कर देंगे ताकि कोई डिसरप्शन नहीं आएगा. जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल वायलेशन हो रहा है, एंड वी विल रिफॉर्मुलेट इट विद इन 6 मंथ सो दैट देयर इज नो डिसरप्शन. नाउ रत्नाज सीनियर्स इन द कंपनी फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. तो जो सीनियर्स हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है. अर्ज अ डिस्क्रीट रिजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट दी ब्रांड्स मार्केट शेयर. वो क्या कह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि बिना बात बाहर निकले ही इसका समाधान हो जाए. डिस्क्रीट रिजोल्यूशन चाह रहे हैं ताकि जो ब्रांड का मार्केट शेयर है वो बना रहे. लेकिन जो मार्केटिंग टीम है उसका कहना है कि अ पब्लिक रिकॉल कुड एलिनेट कस्टमर्स. उनका कहना है कि अगर हम सामान को, उत्पाद को बाजार से वापस बुलाते हैं तो इससे हमारे जो कस्टमर हैं वो एलिनेट हो जाएंगे, कंपनी से दूर चले जाएंगे, छिटक जाएंगे. ठीक है. नाउ द क्वेश्चंस आर, एज ए क्लोज फ्रेंड रत्ना कॉन्टेक्टेड यू फॉर सजेशंस. उन्होंने आपसे सुझाव मांगा है. व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू सजेस्ट टू हर. आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करेंगे? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है, प्रोवाइड रीजंस टू जस्टिफाई योर सजेशंस. आप जो भी सजेशन देंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कारण बताइए. एंड द थर्ड थिंग इज, हाउ डज कॉर्पोरेट वैल्यूज कन्फ्लिक्ट विथ कंज्यूमर वैल्यूज. इस केस में कॉर्पोरेट वैल्यूज कंज्यूमर वैल्यूज के साथ कन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है. सो लेट अस रीड इट क्विकली इन हिंदी ऑल्सो. नाउ सी,
अब प्रश्न क्या है, देखिए 38 वर्षीय रत्ना एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप कंपनी में 38 वर्षीय रत्ना तेजी से बढ़ते स्टार्टअप में वरिष्ठ प्रबंधक हैं जो स्किन केयर मेकअप उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी क्या है, स्टार्टअप है और तेजी से बढ़ रही है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यह विशेषज्ञता रखती है। ठीक है, 2020 में स्थापित इस कंपनी ने, यानी नई कंपनी है, 2020 में स्थापित है, अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडिंग के लिए लोकप्रियता हासिल की है। पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडिंग, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस ब्रांडिंग, इसके लिए लोकप्रियता भी हासिल कर ली है। एक ब्रांड बनाया है अपना जो स्वच्छ, क्रूरता मुक्त और टिकाऊ सौंदर्य प्रसाधनों के वादे के साथ मिलेनियल्स को लक्षित करती है। सौंदर्य प्रसाधनों के वादे के साथ मिलेनियल्स को लक्षित करती है। मिलेनियल्स कौन है? जिनका जन्म इस शताब्दी में हुआ है, 21वीं शताब्दी में जो जन्मे लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग माने जाते हैं, उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। तो अपने एक पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडिंग के जरिए स्वच्छता, क्रूरता मुक्त और टिकाऊ सौंदर्य प्रसाधन के वादे के साथ मिलेनियल्स को ये टारगेट करती है। तो कंपनी का नवीनतम प्रमुख उत्पाद ग्लो प्योर, नवीनतम प्रमुख उत्पाद है ग्लो प्योर नामक एक प्रीमियम फेस स्क्रब है। एक बड़ी सफलता रही है, प्रोडक्ट सफल हुआ है। अकेले 2024 में कंपनी के राजस्व में 10 करोड़ का योगदान दिया है और इसकी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से, इसका जो सप्लाई चेन है, तो आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से 200 स्थानीय नौकरियों का सृजन हुआ है, 200 स्थानीय नौकरियां बनी है। हालांकि उत्पाद विकास और अनुपालन की देखरेख करने वाली वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में, उत्पाद विकास और अनुपालन की देखरेख करने वाली वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में रत्ना एक परेशान करने वाली समस्या का सामना कर रही हैं। अब वो समस्या क्या है? ग्लो प्योर में नियामक सीमा से थोड़ी अधिक सांद्रता में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स कौन से? पॉलीइथाइलिन माइक्रोबीड्स मौजूद हैं। तो यह मुद्दा एक आंतरिक ऑडिट के दौरान सामने आया और सुरक्षा टीम के विश्लेषण से, जो कंपनी की उत्पाद सुरक्षा टीम है, उसके विश्लेषण से अपवर्णन, एक्सफोलिएशन को कहते हैं अपवर्णन, जैसे चेहरे पर जो कॉस्मेटिक या मेकअप या फिर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, तो उनमें जो प्रोडक्ट होती है, एक्सफोलिएशन की क्वालिटी होती है, वो चेहरे पर जो भी गंदगी है उसको दूर करती है, हटाती है, यानी परत को उखाड़ देती है। तो इसीलिए उसे अपवर्णन बोलते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो अपवर्णन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीइथाइलिन माइक्रोबीड्स की ग्लोप्योर में मौजूदगी की पुष्टि हुई है कि भाई ये चीज उसमें पहले से है, सांद्रता से ज्यादा है, जो नियामक सांद्रता है उससे ज्यादा है। ये माइक्रोप्लास्टिक धुल जाने पर अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों से होकर गुजर जाते हैं। ठीक है, ये धुल जाने पर जो अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है उससे होकर गुजरते हैं, मतलब इसका वाटर ट्रीटमेंट का इन पर फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक स्वास्थ्य जोखिम से जुड़े हैं, जिसमें अंतःस्रावी तंत्र में व्यवधान, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, में व्यवधान और हृदय संबंधी समस्याएं शामिल हैं। अच्छा, इसमें चुनौती है, हृदय संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं, क्योंकि ये जहरीले रसायनों को अवशोषित करते हैं। ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जहरीले रसायनों को अवशोषित करते हैं और खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाते हैं जाकर फूड चेन में, जिससे समुद्री जीवों को, समुद्री जीवन और समुद्री भोजन खाने वाले मनुष्यों पर भी असर पड़ता है। समुद्री भोजन को, समुद्री आहार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों पर भी इसका असर पड़ता है। रत्ना एक जटिल नैतिक स्थिति का सामना कर रही हैं। कंपनी के सीईओ को इस उल्लंघन की जानकारी नहीं है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद को तेजी से तैयार किया गया था, जल्दी से फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया गया। नियामकों को इस मुद्दे की सूचना देने से उत्पाद को बाजार से वापस बुलाया जा सकता है। अगर आप नियामक को इसकी सूचना देंगे तो हो सकता है कि उत्पाद को बाजार से रिकॉल करना पड़े, जिससे कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है, कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। ये सब ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, जो नैतिक मुद्दा है उसमें ये सब महत्वपूर्ण चीज आएगा, और प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है।
इससे एक प्रतिष्ठित उद्यम पूंजी फर्म जो वैश्विक स्थिरता, जो वैश्विक, यहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, वैश्विक संधारणीयता, संधारणीयता, वैश्विक संधारणीयता, ठीक है। तो जो वैश्विक संधारणीयता मानकों, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स है, वैश्विक संधारणीयता मानकों के अनुपालन पर जोर देती है, द्वारा निवेश भी खतरे में पड़ सकता है। तो प्रतिष्ठित उद्यम पूंजी फर्म जो है वह निवेश फिर नहीं करेगी अगर मानकों का पालन नहीं हुआ। हालांकि उल्लंघन को छिपाने से उपभोक्ता के स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा उजागर किए जाने पर कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक प्रतिक्रिया, इसका भी खतरा है। तो छिपाना भी उचित नहीं है, अगर इसको जाहिर कर दिया तो फिर अलग तरीके से वित्तीय नुकसान होगा, नौकरियां जाएंगी। तो कंपनी की उत्पादन टीम का तर्क है कि सीमांत अतिरिक्तता नगण्य है, जो मार्जिनल एक्सेस है वो नगण्य है, बहुत मामूली है, और व्यवधान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि उत्पाद को 6 महीनों में धीरे धीरे पुनः तैयार करने का सुझाव देती है। प्रोडक्शन टीम कहती है कि अभी जो प्रोडक्ट मार्केट में गया उसको जाने दीजिए, पर हम इसमें 6 महीना के अंदर अंदर ही धीरे धीरे इसमें परिवर्तन करके सुधार कर लेंगे। कंपनी में रत्ना के वरिष्ठ जो लाभप्रदता पर केंद्रित हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही उनका फोकस है, जो रत्ना के वरिष्ठ हैं, ब्रांड के बाजार हिस्से की रक्षा के लिए एक विवेकपूर्ण समाधान का आग्रह करते हैं। उनका कहना है कि एक विवेकपूर्ण इसका समाधान कीजिए, जबकि विपणन टीम चेतावनी देती है, जो वरिष्ठ हैं वो लाभप्रद, उनका जो फोकस है लाभप्रदता के ऊपर है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। बाजार के ब्रांड हिस्से की रक्षा के लिए विवेकपूर्ण समाधान का आग्रह करते हैं, जबकि विपणन टीम चेतावनी देती है कि सार्वजनिक रूप से उत्पाद वापस लेने में ग्राहक छिटक सकते हैं, ग्राहक कंपनी से दूर भाग सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये है कि एक घनिष्ठ मित्र के रूप में रत्ना ने आपसे सुझाव के लिए संपर्क किया, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? एक बात तो ये आपको बतानी है। दूसरा प्रश्न है कि अपने सुझावों को उचित सिद्ध करने के कारण बताइए, कि आप जो सुझाव दे रहे हैं वो किन ग्राउंड पर उचित है, जस्टिफाई कीजिए। तीसरा, इस मामले में कॉर्पोरेट मूल्य उपभोक्ता मूल्यों के साथ कैसे टकराते हैं, ये आपको बताना है, 250 शब्दों में उत्तर देना है, और 20 अंकों का यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एक एक कर प्रश्नों को देखते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज ए क्लोज फ्रेंड Ratna contacted you for suggestions. What course of action would you suggest to her? अच्छा, एक बात और है कि हमने जब केस स्टडी की जब हम चर्चा करते हैं तो इंट्रोडक्शन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इंट्रोडक्शन को हमें ध्यान में रखना होता है, और इंट्रोडक्शन में हम विशेषकर क्या करते हैं, केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में जब हम केस स्टडी का इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख रहे होते हैं तो उसमें नैतिक मुद्दों को शामिल करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे किसी भी स्थिति में बने हों, नैतिक मुद्दे हों, नैतिक चुनौतियां हों, उन सभी को हमें शामिल करना चाहिए। जैसे वर्तमान इस केस स्टडी में वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एक मुद्दा है ना। वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भले ही मार्जिनल हो, लेकिन जो नियामक मानदंड है उनका उल्लंघन तो हुआ ही है। दूसरी चीज है कि रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ, रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ, तो ये सब बिंदु को शामिल करके ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ। तो जब आपको केस स्टडी में इंट्रोडक्शन लिखना हो तो एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस को शामिल कीजिए, वो एक अच्छा विकल्प है। और अगर प्रश्न में ही एथिकल इशू पूछा गया है या चैलेंज पूछा गया है तो उससे संबंधित कोई और कंसर्न जो केस में मुख्य जो विषय है उसको हाईलाइट कीजिए, उसके संबंध में कोई डेटा दीजिए। जैसे कि अगर पर्यावरणीय आपको संरक्षण पर माइक्रोप्लास्टिक के कोई खतरे को लेकर कोई डेटा आपके पास है, उसको शामिल कर सकते हैं, है ना। तो केस से संबंधित उसकी चिंता को उजागर करने वाला कोई आंकड़ा बताइए, कोई रिपोर्ट बताइए, उससे संबंधित नैतिक मुद्दे बताइए। यही हम केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में अपेक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न क्या है कि आप क्या सुझाव देंगे, है ना। सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी तो कोई एक दिन का काम है नहीं,
सो कंपनी इज लॉन्ग टर्म इंटरप्राइज। अगर आपसे कोई गलती हुई है और कोई प्रोडक्ट आपका भले ही नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए ही सही रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के एक्सेस हो गया है, जो उसमें जो रेगुलेटरी आपको जो थ्रेशोल्ड है, जो नियामक सीमाएं हैं, तो एक नैतिक व्यक्ति के रूप में रत्ना को आप क्या करने का सुझाव देंगे? क्या आप कहेंगे कि रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड के एक्सेस से भी जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में जिस माइक्रोप्लास्टिक की रेगुलेटरी एक्सेस में कंसंट्रेशन है, आप उसको बाजार में जाने दीजिए, क्योंकि ये निश्चित है कि उससे लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। और ये जो माइक्रोप्लास्टिक कंसंट्रेशन होता है, इनकी थोड़ी सी भी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसका बड़ा एक्सपोनेंशियल प्रभाव मानव स्वास्थ्य और जैव पारिस्थितिकी पर पड़ता है, बायोडायवर्सिटी पर पड़ता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ह्यूमन हेल्थ है। केस में भी लिखा गया है कि इंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर हृदय संबंधी रोग पैदा कर सकता है। तो अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन बढ़ा तो इससे रिस्क कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आप सजेशन देंगे कि इस रिस्क पर मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए? पिछले साल 10 करोड़ का फायदा हुआ था कंपनी को, है ना, इस प्रोडक्ट के कारण। मान लीजिए कि फेस्टिव सीजन में 10 के बजाय 2 गुनी बिक्री हो जाए कंपनी की, तो क्या लोगों के स्वास्थ्य की कीमत 10-20 करोड़ रुपए है? स्टार्टअप कंपनी है, गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं प्रोडक्शन प्रक्रिया में कोई चूक हुई हो, कहीं किसी चीज को नजरअंदाज किया गया हो। तो ये तो सुझाव कभी नहीं दिया जाना चाहिए कि आप उसी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाइए। सबसे पहली बात है कि आप जो सुझाव देंगे एक नैतिक व्यक्ति के रूप में कि स्टॉप दी supply of product, stop the supply of product to the market and stop the supply of product to the market and recall the already supplied product item। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या प्राथमिक है? लोगों का जीवन प्राथमिक है, पर्यावरण प्राथमिक है। 10-20 करोड़ रुपया तो कंपनी फिर से कमा लेगी। अगर रोजगार का नुकसान होगा तो क्या जीवन का नुकसान ज्यादा बड़ा है या रोजगार का नुकसान ज्यादा बड़ा है, ये देखना होगा। तो वो सभी चीजें ध्यान में रख के कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करना पड़ेगा। पहली तो चीज कि प्रोडक्ट का सप्लाई रोकिए मार्केट में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कीजिए लोगों को बताने के लिए, और ऐसा नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी स्थिति का मिसयूज कर लें, आपके रेप्यूटेशन को टार्निश करें। अगर पारदर्शिता जहां होती है वहां पर सम्मान बढ़ता है। गलती किसी से भी हो सकती है, तो अपनी गलती को स्वीकारिए। सबसे पहले एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द एरर, है ना, एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज। तो सबसे पहले अपनी गलती को लेकर एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज for the error, organizing a press conference and taking full responsibility, organizing a press conference और पूरी जिम्मेदारी लीजिए, जो गलती हुई है पूरी जिम्मेदारी लीजिए। तीसरी चीज कि initiate an inquiry process in the company, initiate an inquiry process in the company to fix accountability, कि भाई ये जो मार्जिनल भी गलती हुई है, ये गलती क्यों हुई? ऐसा तो है नहीं, थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो उसका लार्ज इंपैक्ट पड़ सकता है ना। सो इनिशिएट एन इंक्वायरी प्रोसेस टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी उसके लिए संबंधित पनिशमेंट है वो दिया जाना चाहिए। अच्छा, चौथी चीज क्या है कि इसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके विषय में विस्तृत ब्यौरा दीजिए जनता को, और ये एश्योरेंस दीजिए कि भाई आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और साथ ही साथ भविष्य में ऐसा मिस्टेक ना हो। तो प्रोडक्ट के परीक्षण को लेकर जो प्रोडक्ट सेफ्टी टीम है उसको और सक्षम बनाइए। प्रोडक्ट सेफ्टी टीम में और नई तकनीकों को शामिल कीजिए। प्रोडक्ट सेफ्टी टीम में
न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि थोड़ा सा भी अगर कोई गैप हो, वेरिएशन हो, उसको डिटेक्ट किया जा सके। एट टाइम्स प्रोडक्ट की इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कराइए, इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट कराइए, है ना, इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट कराइए, इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट कराइए। सो दीज आर दी कोर्स ऑफ एक्शन दैट कुड बी सजेस्टेड बाय एन एथिकल पर्सन टू रत्ना। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अच्छा एक तो बात यह है, इस सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोगों को यह भी ध्यान देना है कि कंपनी के सीईओ को जिन्हें कि इस घटना की जानकारी नहीं है, उनको सबसे पहले ब्रीफ कीजिए। कंपनी के सीईओ को ब्रीफ कीजिए पूरी घटना के बारे में, उनको विश्वास में लीजिए और उनसे इन कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहली बात जो यहां पर आनी चाहिए, ठीक है, ये हम लोगों ने ये बात यहां पर आनी चाहिए। सबसे पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है कि कंपनी के सीईओ को पता ही नहीं है, तो कोई भी काम तो आप खुद से नहीं कर देंगे। सबसे पहले सीईओ को सूचना देंगे, माफी मांगेंगे कि उनको ये जानकारी नहीं दी गई और जेन्युइन रीजन देंगे कि जानकारी क्यों नहीं दी जा सकी। उसके बाद आगे की जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उनसे चर्चा करेंगे और ये उनको सुझाव देंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। सो दिस इज द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर रत्ना। नाउ जो दूसरा आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोवाइड रीजंस टू जस्टिफाई योर सजेशंस, प्रोवाइड रीजंस टू जस्टिफाई योर suggestions. Now see, what is the answer to B? Reasons to justify my suggestion. Reasons to justify my suggestions. ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि सीईओ को जानकारी देना जरूरी है ना। सीईओ क्या है? He is the managing head of the company, so must be aware of the company's activities. Okay, and there should not be any lack of transparency. तो सीईओ को जानकारी देना इसलिए जरूरी है कि इससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी, इससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी, इसलिए सीईओ को जानकारी देना जरूरी है। दूसरी चीज कि फिर सीईओ भी अपने स्तर पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का काम करेंगे, है ना। सीईओ विल ऑल्सो टेक अप द मैटर एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं, सो इट शोज ह्यूमिलिटी। गलती किसी से भी हो सकती है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात को विस्तार से बताकर, जांच रिपोर्ट को सबके सामने मीडिया में रख के अपनी गलती को मानना। और विनम्रता क्या होता है? विनम्रता ये एक कॉर्पोरेट वैल्यू है, ये एक ह्यूमन वैल्यू भी है। इसीलिए ये सजेशन मैंने दिया, क्योंकि अगर विनम्रता से आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास आप में बना रहता है। तो इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, तो पब्लिक ट्रस्ट आप में, कस्टमर का, कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहेगा और हो सकता है कि आपकी मार्केट वैल्यू पर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े और जो फ्यूचर इन्वेस्टर है वो भी आपके साथ एसोसिएशन कायम रखे, क्योंकि आपने कुछ छिपाया नहीं है। अगर आप छिपाए होते तो फिर मुश्किल होता। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि जो हमने बात की यहाँ पर, आपको इनिशिएट इंक्वायरी प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट कीजिए। इससे ये होगा कि जिनके भी नजर से ये चीज बाईपास हुई है, जिन्होंने भी इस चीज को लाइटली लिया है, नाउ इट विल क्रिएट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लीड टू पनिशिंग देम। जो भी उनके लिए पनिशमेंट हो, लाइट हो, हार्श हो, जो भी प्रिवेलेंट नॉर्म्स के अंतर्गत पनिशमेंट हो वो उनको दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि यह फ्यूचर के लिए भी डेटरेंट के रूप में कार्य करेगा। कोई भी भविष्य में इस प्रकार के माइनर नेग्लिजेंस ही क्यों ना सही, वो माइनर नेग्लिजेंस करने से बचना चाहेगा और बहुत सावधानी बरतेगा। चौथी चीज ये है कि हमने बात की जो प्रोडक्ट सेफ्टी टीम है, प्रोडक्ट सेफ्टी टीम को यहां देखिए, प्रोडक्ट सेफ्टी टीम को यहां पर आपको न्यू टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट की हमने बात की। तो ये किस लिए किया? इसका रीजन क्या है? ह्यूमन हेल्थ इज एट द सेंटर। human health of human beings, health of environment, biological ecosystem, this must be at the center of all corporate operations. इससे बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। लाभ कमाएंगे किस कीमत पर? जनता के स्वास्थ्य के कीमत पर, प्रकृति के कीमत पर, पर्यावरण के कीमत पर नहीं। So the reason to justify the suggestion is that the health of human and environmental ecosystems are paramount. That is why there should be more investment in product safety team, so that these type of activities are not repeated
इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बात को कहेंगे। अच्छा, अगला जो इसमें आपको प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो सी है, हाउ डज कॉर्पोरेट वैल्यू कन्फ्लिक्ट विद कंज्यूमर वैल्यू। किस तरीके से कॉर्पोरेट वैल्यू कंज्यूमर वैल्यू के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, आइए उसको देखते हैं। सो कॉर्पोरेट वैल्यूज conflicting with consumer values, corporate values conflicting with consumer values। तो एक तरीके से हमें बताना है कि कहां पर कॉर्पोरेट वैल्यू कंज्यूमर वैल्यू के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है। तो कॉर्पोरेट वैल्यू है आपको प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट वैल्यू क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंट ऑपरेशंस, ओके, इफिशियंसी इन ऑपरेशन। और दूसरी तरफ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरी तरफ क्या है, कंज्यूमर हेल्थ, है ना, कंज्यूमर हेल्थ, दूसरी तरफ है कंज्यूमर हेल्थ। तो यहां पर जो रत्ना के सीनियर हैं उनका ध्यान है कि भाई लाभ ज्यादा हमें महत्वपूर्ण है, लेकिन देखा जाए तो कंपनी के सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, सस्टेन्ड प्रॉफिट के लिए आपको कंज्यूमर ट्रस्ट जीतना होगा। कंज्यूमर ट्रस्ट जीतने के लिए आपको ऑपरेशन सेफ रखने होंगे और प्रोडक्ट को सेफ रखना होगा। तो उस चीज को अगर आपको यहां पर आप देखें तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आपको दिखता है। दूसरी चीज है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एक कॉर्पोरेट वैल्यू है, कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑपरेशन। सो इट कन्फ्लिक्ट्स विद द कंज्यूमर वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एक तरफ तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है ताकि आपके कॉम्पिटिटर्स फायदा ना उठा लें आपकी परिस्थिति का, पर दूसरी तरफ जो कंज्यूमर वैल्यू है वो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, एंड इट इज द कंज्यूमर राइट्स आल्सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्पाद से संबंधित सभी जानकारी उपभोक्ताओं को प्राप्त होनी चाहिए। नाउ दीज टू आर कन्फ्लिक्टिंग। Now the third thing is, reputation. The corporate value of reputation and respect, the brand building, reputation. Now the reputation of the company is conflicting with what? Public response, है ना? So consumer agency. So we can say public response. So public response. Now people have a right, and it is a consumer value you can say, to express themselves, है ना, and there is the fear of public backlash. So people have the right to express themselves, express themselves. That is a consumer value. Consumer also have the right to express themselves, but the reputation of the company is at stake. अगर वो reputation को अगर ध्यान में रखें तो उन्हें पब्लिक बैकलैश को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ताकि लोग बोले ना उस विषय में, लेकिन ये कंज्यूमर वैल्यू के साथ एक कन्फ्लिक्ट होगा। अच्छा, चौथी चीज ये है कि कॉर्पोरेट वैल्यूज क्या होता है, कंप्लायंस। कॉर्पोरेट वैल्यू होता है कंप्लायंस टू रेगुलेटरी नॉर्म्स। जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उसको लेके कंप्लायंस, ये एक कॉर्पोरेट वैल्यू है। वो किस कंज्यूमर वैल्यू के साथ कन्फ्लिक्ट करता है? नाउ हियर वी सी दैट इफ देयर इज स्ट्रिक्ट एम्फेसिस ऑन, अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट एम्फेसिस कंप्लायंस पे होता है तो फिर कस्टमर्स को प्रोडक्ट की डिलीवरी में, सप्लाई चेन में दिक्कत होगी। तो कस्टमर के लिए वैल्यू क्या होती है? एसेसिबिलिटी। अगर कंप्लायंस ज्यादा होगा तो वस्तुओं की कीमत ज्यादा होगी, तो अफोर्डेबिलिटी। So these are the customer values with which the corporate values are conflicting in this present case. Now how can we conclude? किस तरीके से conclude करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि safety of human and environmental health is paramount in business operation. For sustained profit, a company must win people's trust in the long term. Must win the trust of stakeholders, rather say, not only public trust. Must win the trust of all stakeholders, including those who are going to invest in future. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बात को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, दिनेश इज HR मैनेजर इन अ कंपनी। दिनेश इज HR मैनेजर इन अ कंपनी बेस्ड इन वन ऑफ द मेजर सॉफ्टवेयर हब्स इन इंडिया। ठीक है, so he is increasingly concerned about a disturbing trend in the young workforce, increasingly concerned about a disturbing trend in the young workforce in general, young workforce in general and its company's employees in particular। तो एक disturbing trend वो देख रहे हैं young workforce में आमतौर पर और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज में खासकर। So 3 employees of his company, all under 30, suffered heart attacks in the past year. Now these days we are encountering this increasing trend that people, particularly youth, they are succumbing to heart attack, and in fact fit people, healthy people, they are facing this problem of heart attacks on a frequent basis। ठीक है, और उसके कारण लोगों की जान भी जा रही है। सो दिनेश एक HR मैनेजर हैं, इस चीज को लेकर चिंतित हैं। And 3 employees of each company, all under 30, suffered heart attacks in the past year with one fatality. With one fatality. एक व्यक्ति की पिछले वर्ष में जान भी चली गई हार्ट अटैक के कारण। मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉय फीडबैक पॉइंट टू मल्टीपल फैक्टर्स। अब HR हैं, उनको इन चीजों के विषय में गंभीरता से सोचना होता है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी तैयार करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कंपनी में। तो मल्टीपल फैक्टर्स उनको पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट्स और एम्प्लॉय फीडबैक जो बताते हैं कई कारक हैं। हाई वर्क प्रेशर है, टाइट प्रोजेक्ट डेडलाइंस के कारण, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल्स है ना, टाइट प्रोजेक्ट डेडलाइंस के कारण हाई वर्क प्रेशर है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड इनएडिक्वेट वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं। आप देखिए कि लोगों का जंक फूड को लेकर रुझान बढ़ रहा है, लोग खाना स्किप करते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं। सो इनएडिक्वेट वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर। The company's culture of intense competition fueled by performance-based bonuses and a hustle ethos। hustle मतलब काम को हड़बड़ी से करना, जल्दबाजी में करना, उसको एक वहां पर वो कंपनी का इथोस बन चुका है, एक आचार का तरीका बन चुका है। It has led to employees working extended hours, often late into the night। Okay, now the case is highlighting all these things। So this aligns with the recent national debates sparked by proposals to increase the standard work week to 70 hours। आजकल इस प्रकार के चर्चे काफी फैशनेबल हो गए हैं कि वर्क वीक को बढ़ाकर 70 घंटे प्रति सप्ताह कर दिया जाए। कोई महानुभाव 90 घंटे प्रति सप्ताह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ जाएगी, हम जल्दी से 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके के जो नेशनल डिबेट्स हैं, so this aligns with the recent national debate sparked by proposals to increase the standard work week 70 hours to boost productivity। इसका उद्देश्य क्या है? प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना and support India's ambition to become a 5 trillion economy by 2027-28। Now the union government, which had earlier put a target of India becoming a 5 trillion economy by the year 2025, अब उस लक्ष्य को बढ़ाकर 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा। तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। अगर लोग ज्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से काम करेंगे, एक्सटेंडेड आवर्स काम करेंगे, तो एक विचार है कि इससे देश की उत्पादकता बढ़ेगी और युवा ही देश को आगे ले जाते हैं, तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। दिस इशू came to a head when a 26-year-old software engineer Nikhat, she collapsed during a late night coding session। So she collapsed during a late night coding session and was hospitalized for a heart attack। So she collapsed during a late night coding session, got hospitalized, she got heart attack। Her colleagues revealed that she regularly skipped meals, खाना अक्सर skip करती थी। So she regularly skipped meals, relied on energy drinks। Nowadays these tendencies are increasing among youth। So relied on energy drinks and faced immense pressure to meet project milestones। Okay, and she faced immense pressure to meet project milestones। An internal survey by Dinesh conducted showed about 2/3 of employees they report some form of stress। So at least 2/3 of the employees, they are reporting some form of stress। Half of them lack regular exercise
and 1/3 have irregular sleep pattern. 1/3 have irregular sleep pattern. So meanwhile, many CEOs are pushing for longer hours to compete with global tech giants. कई ऐसे CEO हैं, है ना, जैसे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, TCS के भी CEO ने उस विचार का समर्थन किया. तो many CEOs are pushing for longer hours to compete with global tech giants, arguing that employee wellness program जैसे कि free yoga classes, mental health webinars, they are sufficient. However, these programs are underutilized. So they are saying these wellness programs for employees are sufficient. However, these programs are underutilized due to time constraint. Additionally, a prominent industry association is lobbying for extended work. A prominent industry association is also lobbying for extended work constraints. Is lobbying for extended work hours. Lobbying for extended work hours. Extended work hours. Claiming it will enhance national productivity, while workers and trade unions and health experts, they warn of long-term health risks. They are warning of long-term health risks and reduced life expectancy. तो इसमें दोनों तरह की बात है. एक तरफ तो जो कंपनी के CEO हैं वो कह रहे हैं कि वर्किंग आवर बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वो लॉबी कर रही है एक्सटेंडेड वर्क आवर्स के लिए, ठीक है. लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटेगी. Employees have started voicing concern on social media, with some anonymously criticizing the company. So they are anonymously criticizing the company's toxic work culture, drawing media attention and risking the company's reputation. So it is drawing media attention and it poses a risk to the company's reputation. Okay. So Dinesh faces pressure to align with the company's growth goals. अब दिनेश HR हैं, उनके सामने दबाव है. So he has to align with the company's goal growth. जो कंपनी के ग्रोथ गोल्स हैं उसके साथ अलाइन करना है. बट एम्प्लॉइज आर डिमांडिंग बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. उनका कहना है कि भाई हमें बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलना चाहिए. एंड वन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज दैट हैज गोन टू द एक्सटेंट ऑफ थ्रेटनिंग टू एस्केलेट द इशू. और कर्मचारियों का, एम्प्लॉइज का एक ऐसा वर्ग है जिसने की धमकी दी है कि हम इस मामले को एस्केलेट करेंगे एट वेरियस फोरम्स इफ कंडीशंस डोंट इंप्रूव. सो वी विल एस्केलेट द मैटर एट वेरियस फोरम्स, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, be it legal platforms, be it social platforms, economic forums, to if the condition persists. Now, discuss various ethical dilemmas faced by Dinesh. Discuss various ethical dilemmas faced by Dinesh. पहली चीज. दूसरा, examine various options available to him in this situation. What are the various options available to Dinesh? You have to examine it. And the third thing, what long-term policy measures Dinesh should propose? What long-term policy measures Dinesh as HR should propose to create a healthy and sustainable work environment? So what long-term policy measures he can propose for a healthy and sustainable working environment aligning with the global best practices? Now these three questions you have to answer in 250 words and the question carries 20 marks. Okay. Now let us read this in Hindi. इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और ध्यान से इसको पढ़िए. अब इस तरीके के जो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सामाजिक रूप से उभरते हुए मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, वह यूपीएससी के एथिक्स केस स्टडीज में बड़े पूछे जा रहे हैं. इसलिए हमने इस तरीके के मुद्दों को लिया है. दिनेश भारत के एक प्रमुख सॉफ्टवेयर हब में स्थित एक कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधक हैं, HR मैनेजर हैं. वे सामान्य रूप से युवा कार्यबल और विशेष रूप से अपनी कंपनी के कर्मचारियों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं. पिछले वर्ष उनकी कंपनी के 3 कर्मचारियों, जिनकी आयु 30 वर्ष से भी कम थी, यानी युवा कर्मचारी थे, को दिल का दौरा पड़ा था, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी.
चिकित्सा रिपोर्ट और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कई कारकों की ओर इशारा करती है। अब कई कारक हैं जिनमें परियोजनाओं का कठिन समय सीमा के कारण अत्यधिक कार्य दबाव। अब परियोजनाओं की कठिन समय सीमा के कारण अत्यधिक कार्य दबाव एक उसमें कारक के रूप में सामने आया। गतिहीन जीवन शैली, स्थिर जीवन शैली, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, और स्वास्थ्यकर आहार। आहार ऐसा है जिससे स्वास्थ्यवर्धन ना हो, स्वास्थ्य की और समस्याएं पैदा हो, तो अस्वास्थ्यकर आहार संबंधित आदतें हैं लोगों की, वो एक कारक है। और अपर्याप्त कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस, अपर्याप्त कार्य जीवन संतुलन। कंपनी की तीव्र प्रतिस्पर्धा की संस्कृति, कंपनी की तीव्र प्रतिस्पर्धा की संस्कृति जो प्रदर्शन आधारित बोनस और हड़बड़ी की भावना से प्रेरित है, जल्दबाजी की भावना से प्रेरित है, के कारण कर्मचारियों को अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। यह हाल में उस राष्ट्रीय बहस से संबंधित है जो उत्पादकता बढ़ाने, राष्ट्रीय बहस इस चीज पर है, उत्पादकता बढ़ाना है और 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी बनना है। भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये जो लक्ष्य हमने लिया है, तो मानक कार्य सप्ताह को 70 घंटा बढ़ाने के प्रस्तावों से शुरू हुई है। ये जो आपको चर्चा छिड़ी है देश में कि वर्क वीक को, कार्य सप्ताह को 70 घंटे होना चाहिए। तो दिनेश की कंपनी में यह मुद्दा तब और बढ़ गया, कंपनी में यह मुद्दा तब और बढ़ गया जब 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर निखत देर रात कोडिंग सत्र के दौरान बेहोश हो गई। कोडिंग सत्र के दौरान वो बेहोश हो गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके सहकर्मियों ने बताया कि वह नियमित रूप से भोजन छोड़ती थी, स्किप करती थी अपने भोजन को, ऊर्जा पेय पर निर्भर रहती थी, एनर्जी ड्रिंक्स। आजकल इस प्रकार की लत युवाओं को लग रही है जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऊर्जा पेय पर निर्भर रहती थी और परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारी दबाव का सामना कर रही थी। दिनेश द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 2/3 कर्मचारी किसी न किसी प्रकार के तनाव की शिकायत का सामना करते हैं और उनमें से आधे नियमित व्यायाम नहीं करते। तो तनाव का भी सामना कर रहे हैं, व्यायाम भी नहीं करते, और 1/3 की नींद अनियमित है। 1/3 की जो निद्रा है वो अनियमित है। इस बीच कई सीईओ वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कई कंपनियों के जो सीईओ हैं भारत के, वह वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लंबे समय तक काम करने पर जोर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लंबे समय तक काम करने पर जोर दे रहे हैं कि हमें दूसरे जो विश्व की बड़ी दिग्गज तकनीकी कंपनियां हैं उनके साथ कंपीट करना है। अच्छा, यह तर्क देते हुए कि कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम जैसे मुफ्त योग कक्षाएं, मानसिक स्वास्थ्य वेबिनार, ये सभी चीजें पर्याप्त हैं अपने आप में। हालांकि अगर देखा जाए तो इन कार्यक्रमों का लाभ कहाँ मिल पाता है एम्प्लॉइज को, वो तो काम में ही फंसे रहते हैं, समय की कमी होती है। तो समय की कमी के कारण इन कार्यक्रमों का कम उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख उद्योग संघ काम के घंटों को बढ़ाने की पैरवी कर रहा है, यह दावा करते हुए कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, जबकि श्रमिक और ट्रेड यूनियन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों और कम जीवन प्रत्याशा की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप राष्ट्रीय उत्पादकता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दीर्घकालिक स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा होती हैं। लगातार युवाओं में इस तरीके से आप देखें तो हृदयाघात का, दिल का दौरा पड़ने की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इससे स्वास्थ्य जोखिम और जीवन प्रत्याशा में कमी की बात स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा की गई है। अच्छा, अब इस परिदृश्य में आपको बात करना है, 3 प्रश्न आपको यहां पर हैं, 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि दिनेश के सामने आने वाली विभिन्न नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए। जो दिनेश एचआर हैं, इनके समक्ष जो विभिन्न नैतिक दुविधाएं हैं उसकी आपको चर्चा करनी है। इस स्थिति में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कीजिए। तीसरा, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक स्वस्थ और टिकाऊ कार्य, टिकाऊ यहां पर हम संधारणीय लिख सकते हैं, सस्टेनेबल, संधारणीय है ना,
एक स्वस्थ और टिकाऊ कार्य वातावरण बनाने के लिए दिनेश को कौन से दीर्घकालिक नीतिगत उपाय प्रस्तावित करने चाहिए? तो मतलब एक स्वस्थ और टिकाऊ, संधारणीय, सस्टेनेबल वर्क एनवायरनमेंट। तो एक एक कर हम देखते हैं इन तीनों को, है ना। चलिए, सो इन द इंट्रोडक्शन वी कैन स्टार्ट विथ एथिकल इश्यूज एज वी टॉक। इंट्रोडक्शन में हम नैतिक मुद्दों की बात कर सकते हैं, नैतिक मुद्दों की, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम नैतिक मुद्दों की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं यहाँ पर, कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं? सबसे पहले क्या कहा गया है? अच्छा, अगर एथिकल इशू आपसे अलग से केस स्टडी में सेपरेट क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा गया हो, सो द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट विथ एथिकल इशूज। अगर एथिकल इशू पूछा गया है तो वहां पर आप कोई महत्वपूर्ण आंकड़ा देते हुए या संबंधित समस्या को बताइए, फिर जो समस्या है उस चीज को इंट्रोडक्शन में बताइए कि यहाँ पर इस चीज की समस्या है। अच्छा, अब इस केस में, पर्टिकुलर केस में एथिकल इशू क्या है? सबसे पहले कि वर्क कल्चर टॉक्सिक है। वर्क कल्चर क्या है? टॉक्सिक है। वर्क कल्चर इनकरेजिंग नहीं है, पॉजिटिव वर्क कल्चर नहीं है। सो दिस इज एन एथिकल इशू। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ह्यूमन वर्क कल्चर ऐसा है कि ह्यूमन हेल्थ को ग्रेव रिस्क है, ह्यूमन हेल्थ को ग्रेव रिस्क है। तीसरी चीज ये है कि वर्कर्स कंडीशन को लेकर एम्पैथी नहीं है, बस केवल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की बात है। अरे देश $5 ट्रिलियन का बन जाएगा, जब लोग ही स्वस्थ नहीं होंगे, युवा मर जाएंगे हार्ट अटैक से, हृदयाघात से, तो वैसे उत्पादकता का और वैसी प्रगति का फायदा क्या होगा? विकास का सुख भी तो भोगने वाला चाहिए, कि लोग को बस केवल खपाना है अर्थव्यवस्था में। फिर नागरिक अधिकारों, श्रम अधिकारों की क्या बात होगी? क्या श्रमिकों का और काम करने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं है? क्या उनका उद्देश्य केवल इतना है कि बड़ी कंपनियों के लिए वो मुनाफा पैदा करने वाले केवल मशीन मात्र हैं? क्या उनके शरीर को थकान नहीं होती? क्या उनके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा दृष्टिकोण एम्पैथी नहीं रखता है, लोगों के प्रति समानुभूति नहीं होती। बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, सीईओ हैं, उन्हें क्या मालूम कि एक आम व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, बस जीवन को सम्मान पूर्वक जी लेने के लिए, भोजन से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर और तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए। तो क्या शारीरिक रूप से भी इतना थका दिया जाए कि उसके शरीर को ना आराम मिल सके और मानसिक रूप से तनावग्रस्त होकर उसका जीवन ही समाप्त हो जाए? ये तो उचित बात नहीं है। अच्छा, तो एक उसमें संतुलन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली। अब पहली जो चीज है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एथिकल डायलेमाज फेस्ड बाय एथिकल डायलेमाज फेस्ड बाय दिनेश। दिनेश क्या एथिकल डायलेमा फेस कर रहे हैं? एचआर मैनेजर हैं, तो एचआर मैनेजर हैं तो उनको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले एम्प्लॉइज वेलफेयर देखना है। जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो, तो उनको ह्यूमन रिसोर्स वेलनेस की ओर ध्यान देना है, उनका कल्याण। और उसमें हेल्थ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हेल्थ, एंड दैट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो एक तरफ तो ये चीज है, और दूसरी तरफ क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं तो उनको ह्यूमन प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमाइज करनी है। सो इट इज एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी, सो दैट इज ऑल्सो हिज वर्क। नाउ देयर इज अ conflict between these two things. Now if he looks after the wellness, so somewhere the we can say not yes, the employees productivity as well as company's profit, है ना। तो कंपनीज प्रॉफिट, वो भी तो उनका ध्यान उस पर भी तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ उनका एथिकल डायलेमा ये है कि उनको वर्कर्स के प्रति वो एम्पैथी दिखाएं, एम्प्लॉइज के प्रति वो एम्पैथी दिखाएं, या फिर वो कंपनी के परफॉर्मेंस की ओर ध्यान दें वर्सेस कंपनीज एफिशिएंसी। किसको ध्यान देना है उनको? वर्कर्स के प्रति अगर एम्पैथी दिखाते हैं तो कंपनी का एफिशिएंट ऑपरेशन प्रभावित हो जाएगा, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों का जो टोटल आउटपुट है वो कम हो जाएगा, तो कंपनी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और उसका ओवरऑल कहीं जाकर रेप्यूटेशन भी खत्म हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि एचआर के रूप में जैसा मैंने कहा कि कंपनी का रेप्यूटेशन
कंपनी का रेप्यूटेशन खराब ना हो, ये उनको ध्यान देना है। तो कंपनी का अगर इस प्रकार से टॉक्सिक वर्क कल्चर कंपनी की होगी, मीडिया में ऐसी बातें चलेंगी, सोशल मीडिया में लोग ऐसी चर्चाएं करेंगे, एंड इफ द वर्कर्स और इफ द and if the employees of the company, if they raise such issues on public platforms, so obviously the reputation of the company is going to be hit। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज रेप्यूटेशन वर्सेस कंपटीशन, रेप्यूटेशन वर्सेस कंपटीशन। सो कंपटीशन इज अ कॉर्पोरेट वैल्यू, प्रतिस्पर्धा। So they will not be able to compete, they will not be able to compete if the performance is not up to the potential, है ना। तो जहां तक जिस एक्सटेंट तक संभव हो वहां तक अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे और वो फिर मार्केट में कमजोर पड़ जाएंगे। अच्छा, चौथी चीज ये है कि कहीं ना कहीं एचआर मैनेजर है वो, सो ही ऑल्सो हैज टू लुक फॉर we can say compliance to the रेगुलेटरी नॉर्म्स। उनको कंप्लायंस को भी देखना होगा कि जो वर्क वीक का कंप्लायंस है उसको सुनिश्चित करना है, और दूसरी तरफ एक तरफ तो वर्क वीक का कंप्लायंस है। नाउ व्हाट एवर द रेगुलेशन इज सेट एट प्रेजेंट, एक एचआर के रूप में दिनेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो वर्क आवर का कंप्लायंस है वो सुनिश्चित रहे, पर दूसरी तरफ उनको यह भी देखना है कि जो वर्कर्स हेल्थ है ना, एम्प्लॉइज हेल्थ, उसका भी उन्हें ख्याल करना है। तो एक तरफ कंपनी का हेल्थ है और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज का हेल्थ है। अब उसमें से किसको सिक्योर करेंगे? एम्प्लॉय का हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो कंपनी की हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है ना। सो दीज आर द एथिकल डायलेमाज फेस्ड बाय दिनेश। नाउ examine various options available to him in this situation. What are various options? What can he do in this situation? Let us see. Various options available to Dinesh in this situation. Various options available to Dinesh, in this situation. क्या क्या ऑप्शन है उनको एग्जामिन भी करना है, मतलब उनके मेरिट डिमेरिट भी आपको बताने। सबसे पहले तो कि जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। मेंटेनिंग द स्टेटस को, मेंटेनिंग द स्टेटस को अगर मेंटेन करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? इफ स्टेटस को इज मेंटेन्ड तो इसका फायदा ये होगा कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बनी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पर फिर आपको ज्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा, तो जो एक्सपेंडिचर है रिक्रूटमेंट पे वो कम होगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसका डिमेरिट क्या है कि एम्प्लॉइज का हेल्थ हेवीली सफर करेगा। सो द एम्प्लॉइज हेल्थ विल सफर हेवीली एंड दिस discussion can go further and it can also take the legal route, regulatory route, and the company may have to suffer in the long term। और इससे लीगल कंसिक्वेंस हो सकते हैं, कंपनी का रेप्यूटेशन खराब हो सकता है, चूंकि एम्प्लॉइज ग्रुप ने कहा है कि हम मामला आगे भी ले जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज है कि या तो ऐसा कर सकते हैं कि परसुएड, चूंकि एचआर मैनेजर हैं तो परसुएड दी कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको परसुएड कर सकते हैं टू रिलैक्स द टाइट शेड्यूल एंड वर्किंग आवर्स इन लाइट ऑफ हिज ओन इंटरनल सर्वे। तो दिनेश ने तो खुद इंटरनल सर्वे करवाया था, है ना, खुद इंटरनल सर्वे करवाया। इंटरनल सर्वे करा के क्या पता चला कि सभी लोग, 2/3 लोग कम से कम किसी तरीके के स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, और कुछ लोग, 1/3 लोग वो अनियमित रूप से उनकी निद्रा हो चुकी है, खान पान व्यायाम नहीं है जीवन में। ठीक है। तो वो कंपनी के मैनेजमेंट को परसुएड कर सकते हैं कि भाई आप रिलैक्स कीजिए टाइट शेड्यूल को और वर्किंग आवर को भी इंटरनल सर्वे को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी तरफ उसमें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि वो कितने घंटे काम कर रहा है, ये देखिए कि वो कितना एफिशिएंट है। अरे आप बैठा लीजिए 70 घंटे ऑफिस में लोगों को, 90 घंटे बैठा लीजिए, नारायण मूर्ति की ही इच्छा का पालन हो जाए,
बैठा लीजिए 70 घंटे। इससे क्या होगा, लोग काम करने लगेंगे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, कौशल विकास में इन्वेस्ट कीजिए, एम्प्लॉय की इफिशियंसी को बढ़ाइए, दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, वो तरीका होता है। तो अब यहां पर देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि एम्प्लॉयज का वेलफेयर होगा, सबसे पहली बात, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, कंपनी का रेप्यूटेशन बढ़ेगा, ज्यादा टैलेंट एक्विजिशन आप कर सकेंगे, ज्यादा अच्छे टैलेंट आपके पास आ सकेंगे। इसका निगेटिव ये होगा कि हो सकता है कंपनी को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़े एम्प्लॉयज के स्किल अपग्रेडेशन में। अच्छा, दूसरी चीज है कि टाइट शेड्यूल होने के कारण आपको हो सकता है कि एडिशनल वर्कफोर्स रिक्रूट करना पड़े, एडिशनल वर्कफोर्स। तो भाई काम करने आए हैं या खून चूसने आए हैं, पहले ये तय कर लीजिए कि व्यक्ति का खून चूस लेना है या काम करना है, क्या अपने लिए एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट बिल्ड करना है। भारत में ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका और जिनके मालिकों का नाम सम्मान से लिया जाता है। टाटा कंपनी के विषय में भारत का हर व्यक्ति जानता है, माचिस की तिल्ली से लेकर हवाई जहाज ऑपरेट करने वाली कंपनी है, और उनके मालिकों को लेकर भी बहुत रिस्पेक्ट से भारत के लोग नाम लेते हैं। किस वजह से, एज दे हैव ऑलवेज लुक फॉर द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने जो उद्योग है उसके ह्यूमन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा है। एम्प्लॉयज का वेलफेयर हो, लोगों का वेलफेयर हो, समाज का विकास हो, तो आप उसके बिना कहां धंधा कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एडिशनल वर्कफोर्स एंड दैट विल ब्रिंग और यील्ड प्रॉफिटेबिलिटी टू द कंपनी, उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपको चिंता नहीं करनी है। अच्छा, तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प ये है कि आप एक तरीके से एम्प्लॉयज की डिमांड को मानते हुए कंपनी में रिक्रिएशन फैसिलिटीज की सुविधा दें, रिक्रिएशन फैसिलिटीज की, है ना। साथ ही साथ पीयर ग्रुप इनिशिएट कर सकते हैं आप, पीयर ग्रुप इनिशिएट कर सकते हैं कि लोग पीयर ग्रुप बनाएं, आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, ठीक है। और आप कंपनी के अंदर, चूंकि हालांकि जिम वगैरह हर चीज की सुविधा होती है अच्छी कंपनियों में, तो इन हाउस जिम अगर नहीं है तो इन हाउस जिम की व्यवस्था दीजिए, है ना, इन हाउस जिम की व्यवस्था दीजिए। ब्रीफ मेडिटेशन सेशंस वर्किंग आवर के बीच में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रीफ मेडिटेशन सेशन। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य के अंदर चमत्कारी परिवर्तन लाती है। ऐसा नहीं कि मनुष्य पंख लगा के उड़ने लगता है ध्यान करने के बाद, पर उसका मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्रचित होता है, और एक एकाग्र मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से शक्ति होती है जैसे आप मिरर को, अगर सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करेंगे उस लेंस से, तो उसमें आग तक लगा देने का ताकत होता है। तो उसी तरीके से मेडिटेशन क्या करता है, व्यक्ति को फोकस करता है। ओके, तो बाय रिक्रिएशन फैसिलिटीज, पीयर ग्रुप इनिशिएटिव, सो इसका पॉजिटिव क्या होगा कि इससे एक बेटर वर्क कल्चर वहां पे बनेगा, बेटर वर्क कल्चर प्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एज दीज आर वेरी सटल वेज टू इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज फोकस्ड होंगे, जब वो पॉजिटिव महसूस करेंगे, तो वो नए विचार पैदा करेंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे, ज्यादा इमेजिनेटिव होंगे। इन बातों को नारायण मूर्ति जैसे महान लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, बेटर वर्क कल्चर एंड एफिशिएंसी। दूसरी चीज है कि इसका निगेटिव क्या होगा, अगर रिक्रिएशन फैसिलिटी, पीयर ग्रुप इनिशिएट हो जाए और इन हाउस फैसिलिटीज दें, इस तरीके से उनको सुविधाएं दें, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है। वही बात है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लग सकता है, ठीक है। और कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं कि वो ज्यादा इंटरेक्शन ना चाहते हों, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होंगे, तो उनका भी फीडबैक आपको लेना जरूरी पड़ सकता है। अच्छा, चौथा विकल्प उनके सामने क्या है, चौथा विकल्प ये है कि जो एम्प्लॉय इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम एस्केलेट कर देंगे मैटर को, या जो सोशल मीडिया पर जाकर बात करते हैं, उनको टारगेट किया जाए कि भाई ये कंपनी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कंपनी के रेप्यूटेशन को हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टारगेटिंग एंड कंट्रोलिंग सच एम्प्लॉइज, ये भी तो एचआर के पास विकल्प है कि उनको
टारगेट किया जाए कि भाई कंपनी के काम में आप क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, कंपनी की जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी, तो कोई डिसरप्शन नहीं होगा, कंपनी के ऑपरेशंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, डिसरप्शन नहीं होगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट आपसे खुश रहेगा, आपकी करियर प्रोस्पेक्ट अच्छी होगी, माना जाएगा कि देखो ये व्यक्ति तो कंपनी के हित में काम कर रहा है, जबकि वस्तुतः देखा जाए तो वो व्यक्ति कंपनी के अहित में काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसका निगेटिव क्या होगा कि जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है वो और ज्यादा गहरा जाएगा, टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि इस तरीके से कंपनी की छवि क्या बेहतर हो सकेगी, क्या आप लोगों को शिकायत करने से रोक पाएंगे, आप कितना भी टारगेट कर लें तो कंपनी का रेपुटेशन भी खराब होगा, ठीक है। Okay, so this was with respect to examination of the options available to Dinesh in this situation. Now, the question is, now, what long-term policy measures Dinesh should propose to create a healthy and sustainable work environment? क्या long-term policy measures उन्हें propose करने चाहिए to create a healthy and sustainable work environment aligning with global best practices? So, what long-term policy measures? What long-term policy measures he should suggest? Now see, long-term policy measures for healthy and sustainable work environment, healthy and sustainable work environment, ठीक है, क्या होगा हेल्दी एंड सस्टेनेबल वर्क एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि इंश्योर कर सकें, इंश्योरिंग वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉइज, उनको भाई चैन से जीने भी तो देना है कि सारा खून चूस लेना है, इंश्योरिंग वर्क लाइफ balance of employees through mix of work from home and work from office options, इन दोनों का मिक्स यूज कीजिए, घर पर भी अधिक समय बिताएं, कुछ इस तरीके से करिए। लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी मेजर है हेल्दी और सस्टेनेबल वर्क एनवायरनमेंट के लिए। दूसरी चीज क्या है कि रेगुलर सर्वेज कराइए उनमें, ऐसा नहीं कि वन टाइम, रेगुलर सर्वेज कराइए ताकि उनके भी टेंडेंसीज को आप फॉलो अप कर सकें, उनकी टेंडेंसीज को फॉलो अप कर सकें, उनके जो चेंजिंग एटीट्यूड्स हैं उसको फॉलो अप कर सकें और उस हिसाब से फिर पॉलिसी अपडेट कीजिए, ठीक है। सो रेगुलर इंटरनल सर्वेज। अच्छा, उसके बाद हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा किया जा सकता है कि अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंसेस, हालांकि कंपनियां ऐसे हेल्थ इंश्योरेंसेस का कवर देती हैं, पर ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब चूंकि हेल्थ, हार्ट अटैक ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, तो एट टाइम्स ह्यूज इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगता है। सो सच हेल्थ कवरेज, प्रोवाइडिंग comprehensive health coverage, providing comprehensive health coverage including hospitalization cost, providing comprehensive health coverage including hospitalization cost, for diseases like NCDs also, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड कराइए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इसके लिए। और जो चौथी चीज है कि कंपनी के अंदर भी सोशलाइजिंग एक्टिविटीज हो, सोशल गैदरिंग्स हो और आर्ट एंड कल्चर फंक्शंस हो, उसको प्रमोट कीजिए कंपनी के अंदर। अरे ये सब लॉन्ग टर्म में बड़ा हेल्प करती हैं, एफिशिएंट बनाती हैं, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट पैदा करती हैं। सो सोशलाइजिंग एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग्स, कल्चरल इवेंट्स, है ना, कल्चरल इवेंट्स, ताकि स्ट्रेस कम होगा। अच्छा,
उसके बाद क्या है कि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्क इन्वायरमेंट बना दिया, हड़बड़ी में चीजें हो रही हैं, वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के प्रोजेक्ट टाइमलाइंस हैं उनको भी रैशनलाइज करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म में। जो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, उनको क्या करिए, रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। एआई का मदद लीजिए उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि डेडलाइंस कैसे मीट होंगी। ग्रुप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टीम का कंस्ट्रक्शन है, टीम का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कीजिए कि टास्क को कंप्लीट कम समय में किया जा सके, है ना। सो दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वेज टू डू। देयर आर मल्टीपल वेज इन विच दीज थिंग्स कैन बी अचीव्ड। So why can't we do this irrespective of putting more and more pressure on the employee and just sucking the blood out of the person? तो हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि एम्प्लॉइज वेलफेयर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। आप एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका कंपनी नहीं चलेगा, रेपुटेशन खराब होगा। एंड अ कंपनी इज नॉट ओनली a profit enterprise but also a value enterprise. A company is not only a profit enterprise but also a value enterprise. ठीक है, तो हमें वैल्यू बेस्ड सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए किस प्रकार का प्रॉफिट होना चाहिए? प्रॉफिट विथ एम्पैथी, प्रॉफिट विथ द नोशन ऑफ वेलफेयर। तो इस तरीके से हम एथिकल नोट पर एंड कर सकते हैं अपने आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं केस स्टडी के अंतिम क्वेश्चन, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12। सो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कीर्ति, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कीर्ति हु इज अ यंग टाउन प्लानर। So now this is again about a young professional named Kirti. So Kirti is a young town planner. She is a young town planner, recently appointed as the assistant commissioner of the urban development department in a metropolitan city in India. Okay, so you need to focus on the designation. Accordingly, you can think about the power and the authority of the person and the responsibility. So metropolitan city in India, the city has a burgeoning middle class eager to transform it into a world class urban center. So the burgeoning or the growing middle class, it is aspirational and wants the city to become a world class city, world class urban center which is free of slums and unauthorized colonies to rival global cities like Singapore. ठीक है, so receiving feedback from various resident welfare associations, RWAs of gated societies, the corporation has ordered the demolition of a 20-year-old slum. Ordered the demolition of a 20-year-old slum housing thousands of families, mostly migrant workers employed in construction and domestic services. So the slum located on a prime land. Now the slum is located on a prime piece of land near a new business district, and it is seen as an eyesore by the city's elite and middle class. कि भाई ये एक नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के इतने पास, इतने प्राइम लैंड पर ये स्लम कई दशकों से बसा हुआ है, तो ये आंख में कांटे की तरह चुभता है शहर के जो एलिट लोग हैं और जो मिडिल क्लास रेजिडेंट्स हैं, हु हैव पिटिशनड इट फॉर इट्स रिमूवल टू इनहांस प्रॉपर्टी वैल्यूज एंड एस्थेटिक्स। तो उनका कहना है कि अगर ये झुग्गी हट जाएगी तो इससे प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ जाएगा और शहर के जो एस्थेटिक्स हैं, शहर की जो सुंदरता है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। लास्ट वीक विदाउट प्रायर नोटिस or adherence to protocols, bulldozers demolished hundreds of homes in the slum settlement without any prior notice. So it demolished hundreds of homes in the slum settlement, displacing residents including women, children and elderly individuals. तो बिना किसी नोटिस के बुलडोजर से उसे नष्ट कर दिया गया। The demolition was executed on the orders of, किसके ऑर्डर पे किया गया? Municipal commissioner, who cited public interest and pressure from the state government.
pressure from the state government to expedite the project बिफोर एन अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रेड समिट। तो उनका कहना था कि भाई स्लम को खाली कराने का जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सपीडाइट करना था बिफोर एन अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रेड समिट। कोई आने वाले समय में एक इंटरनेशनल ट्रेड समिट उस मेट्रोपॉलिटन सिटी में होने वाला है, तो उसके लिए झुग्गी को खाली कराने की जो प्रोजेक्ट थी उसको एक्सपीडाइट करना था पब्लिक इंटरेस्ट में, और राज्य सरकार का दबाव भी था। नाउ रेजिडेंट्स वेयर गिवन ओनली आवर्स टू इवैक्यूएट, केवल कुछ ही घंटे दिए गए। लिविंग मेनी विदाउट शेल्टर, पर्सनल बिलोंगिंग्स, ओके, पर्सनल बिलोंगिंग्स और एक्सेस टू बेसिक अमेनिटीज। लोकल मीडिया रिपोर्टेड हैरोइंग सीन्स, local media, it reported harrowing scenes of families sleeping on streets, and a viral video showed a pregnant woman pleading with officials as her home was razed, sparking public outrage. Okay, now a video went viral in which a pregnant woman, she is seen pleading with the officials as her home was being razed and demolished, and this sparked public outrage, okay, anger in public. So NGOs, they have condemned the demolition, the action, alleging violations of human rights, and Kirti was not consulted before the demolition. Kirti, who is appointed as the assistant commissioner, so she was not consulted before the demolition, but is now tasked with overseeing the next phase. Now there is the next phase of demolition, and Kirti is charged with executing or overseeing the next phase of demolition. Okay, so she is charged with overseeing the next phase of demolition, which involves clearing the remaining homes in that slum. So certain number of homes have been cleared, and the remaining homes to be cleared have to be overseen by Kirti, though she was not consulted before the first exercise. So her conscience is troubled. Now she has a troubled conscience. She joined the civil services inspired by the vision of inclusive development, but the demolition's lack of empathy, in the demolition process and disregard for legal protocols, it conflicts with her values. So she visited the locality and met residents. Like a single mother who lost her tailoring business in the demolition process, a daily wage laborer who fears his children will drop out of school without a home. So there are multiple ramifications and consequences of these type of exercises on the vulnerable section of population. Now, the Residents Welfare Association (RWA) of an adjacent affluent neighborhood, backed by a powerful real estate developer, is pressurizing Kriti to complete the demolition swiftly. So RWA, which is backed by a real estate developer, powerful real estate developer, and pressurizing Kriti to complete the demolition swiftly, arguing that it will boost the city's global image, ताकि ये शहर के global image को boost करेगा. Meanwhile, the municipal commissioner has hinted that compliance is crucial for her career progression. Now she has also been given a bait. That if you comply, then it will help. A hint has been given that it will help for your career progression. However, a group of slum dwellers supported by NGOs has filed a petition in the High Court seeking a stay on further demolitions and demanding rehabilitation. Okay, now they have gone to the High Court, taken legal measure. Okay, the state government, it is keen on showcasing a slum-free city. Okay, is pushing for rapid action, but rehabilitation plans, they are vague. So there is vague rehabilitation plan, where they will be resettled, where they will be rehabilitated, how many families will be rehabilitated. So all these things are vague, not clear. With only 500 temporary shelters available, far short of what is needed. So the state government, which has prepared a rehabilitation plan
So it has only 500 and that too temporary shelters. There is no permanent shelter and it is far short of what is needed. Now the question is, what are the ethical issues involved in this case? Question number 1, what are the ethical issues involved in this case? Second question is, what course of action should Kirti choose to address the ethical conflict? What course of action should Kirti choose to address the ethical conflict in her conscience? Okay. Now question number C, what are the ethical problems? What are the ethical problems with a world-class city with no inclusive spaces for weaker sections of society? World-class city with no inclusive spaces for weaker sections of society. What are the ethical problems with such a world-class city? You have to answer in 250 words and the question is of 20 marks. Now, reading the case study in Hindi, let us see what it says. देखिए, देखते जाइए. So this is question number 12 as I said. कीर्ति एक युवा टाउन प्लानर है. She is a young टाउन प्लानर, नगर नियोजक हैं, जिन्हें हाल ही में भारत के एक महानगर में शहरी विकास विभाग में सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है. सहायक आयुक्त शहर में एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग है जो इसे सिंगापुर जैसे वैश्विक शहरों को टक्कर देने के लिए झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों से मुक्त कर एक विश्व स्तरीय शहरी केंद्र के रूप में बदलने के लिए उत्सुक है. ठीक है. गेटेड सोसाइटीज किन्हें कहते हैं? वैसे रिहायशी क्षेत्र जिन तक प्रवेश और निकास नियंत्रित होता है. गेट यानी कि द्वार बने होते हैं प्रवेश के और निकासी के, और केवल उन्हीं गेट्स के माध्यम से ही उनमें प्रवेश और निकासी की जा सकती है. कहने का अर्थ कि जो लोग अंदर में रह रहे हैं केवल वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं, और या फिर जो उनके से संबंधित लोग हैं. ठीक है, तो उन्हें हम गेटेड कॉलोनीज कहते हैं. तो गेटेड सोसाइटीज खासकर आपको बड़े शहरों में, महानगरों में और अब तो छोटे शहरों में भी इनका प्रचलन बढ़ गया है. तो गेटेड सोसाइटीज के विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद निगम ने 20 साल पुरानी एक झुग्गी बस्ती को गिराने का आदेश दिया है, जहां हजारों परिवार रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर निर्माण और घरेलू सेवाओं में कार्यरत प्रवासी मजदूर हैं. एक नए व्यावसायिक जिले के पास प्रमुख भूमि पर स्थित इस झुग्गी बस्ती पर शहर के कुलीन और मध्यम वर्ग के निवासी आंख गड़ाए हुए हैं, जिन्होंने संपत्ति के मूल्य और नगर सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इसे हटाने की याचिका दायर की है. इसे हटाने की याचिका किसको दी है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दी है. पिछले सप्ताह बिना किसी पूर्व सूचना या प्रोटोकॉल का पालन किए हुए बुलडोजरों ने झुग्गी बस्ती में सैकड़ों घरों को गिरा दिया, जिससे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित निवासियों को विस्थापित होना पड़ा. यह तोड़फोड़ नगर आयुक्त के आदेश पर की गई, जिन्होंने जनहित और आगामी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन से पहले परियोजना में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के दबाव का हवाला दिया. दो बातें कही कि भाई ये जनहित में गिराया गया है और राज्य सरकार का दबाव है क्योंकि आगामी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है. ठीक है. तो निवासियों को घर खाली करने के लिए केवल कुछ घंटे दिए गए, जिससे कई लोग बिना आश्रय, निजी सामान या बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रह गए. अब स्थानीय मीडिया ने सड़कों पर सो रहे परिवारों के भयावह दृश्यों की रिपोर्ट दिखाई, और एक वायरल वीडियो में एक गर्भवती महिला को अधिकारियों के साथ गुहार लगाते दिखाया गया जब उनका घर तोड़ा जा रहा था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. इस वीडियो को देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया जब वह गर्भवती महिला अधिकारियों से आग्रह कर रही थी कि भाई मेरा घर मत तोड़ो. अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है कि गैर सरकारी संगठनों ने मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है
और कार्रवाई की निंदा की है। कीर्ति से तोड़फोड़ से पहले सलाह नहीं ली गई थी, पहले कोई परामर्श कीर्ति से नहीं लिया गया, लेकिन अब उन्हें अगले चरण की देखरेख का काम सौंपा गया है, जो अगले चरण में झुग्गियों को तोड़ना है, जिसमें उस झुग्गी बस्ती में बचे हुए घरों को खाली कराना शामिल है। मतलब पहले फेज में कुछ घरों को वहां पर से खाली कराया गया, तोड़ा गया, और जो बचे हुए घर हैं उस झुग्गी में दूसरे चरण में उनको गिराया जाना है, और दूसरे चरण की देखरेख की जिम्मेदारी कीर्ति को दी गई है। हालांकि पहले चरण में उनसे कोई परामर्श या पूछताछ नहीं किया गया था। अब कीर्ति की अंतरात्मा क्या है? व्यथित है, क्योंकि उन्होंने समावेशी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सिविल सेवा में प्रवेश किया था, लेकिन तोड़फोड़ में समानुभूति की कमी और कानूनी प्रोटोकॉल की अवहेलना उनके मूल्यों के विपरीत है। अब यहां पर दिक्कत कीर्ति की अंतरात्मा को हुई। सो उन्होंने इलाके का दौरा किया और निवासियों में से एक अकेली मां से भेंट की, जिन्होंने तोड़फोड़ में अपनी सिलाई का व्यवसाय खो दिया। ठीक है, अकेली मां से भेंट की, तोड़फोड़ में अपने सिलाई का व्यवसाय खो दिया। एक दिहाड़ी मजदूर से मिली, जिसे डर है कि उसके बच्चे घर के बिना स्कूल जाना छोड़ देंगे। कहां से जाएंगे? घर ही नहीं होगा तो स्कूल कहां से जाएंगे? तो एक शक्तिशाली ताकतवर रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा समर्थित निकटवर्ती समृद्ध इलाके का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA कीर्ति पर तोड़फोड़ को शीघ्र पूरा करने का दबाव बना रहा है। मतलब जो अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है, तोड़फोड़ है, उसे शीघ्र पूरा करने का दबाव बना रहा है, यह तर्क देते हुए कि इससे शहर की वैश्विक छवि में सुधार होगा। इस बीच नगर आयुक्त ने संकेत दिया है कि अनुपालन कीर्ति के करियर की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी ये भी बात कह रहे हैं कि भाई आप इसमें सहयोग कीजिए, इससे आपके आगे भी करियर को फायदा होगा। हालांकि गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित झुग्गी वासियों के एक समूह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगाने और पुनर्वास की मांग की गई है। वो चले गए हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर स्टे लगाइए और हमें पुनर्वास की सुविधा दीजिए। अच्छा, राज्य सरकार जो एक झुग्गी मुक्त शहर का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है, एक झुग्गी मुक्त शहर वह दिखाना चाहती है आने वाले आगामी शिखर बैठक में, जो निवेशकों की बैठक होने वाली है, तो शहर का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है, त्वरित कार्रवाई पर जोर दे रही है। लेकिन पुनर्वास योजनाएं अस्पष्ट हैं। पुनर्वास को लेकर क्या योजना है सरकार की, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। केवल 500 अस्थायी आश्रय उपलब्ध हैं, केवल 500 टेम्पररी शेल्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि आवश्यकता से बहुत कम है। तो इस मामले में अब प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं, इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं। दूसरा, कीर्ति को अपनी अंतरात्मा में नैतिक संघर्ष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, कौन से ऐसे कदम उठाएं कीर्ति, ताकि उनकी जो अंतरात्मा में नैतिक जो एक जो असंतुलन पैदा हुआ है, एक जो अस्थिरता पैदा हुई है, संघर्ष हुआ है, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगी। और तीसरा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए समावेशी स्थानों के बिना एक विश्व स्तरीय शहर की नैतिक समस्याएं क्या हैं। मतलब एक ऐसा शहर जो कि विश्व स्तरीय है, लेकिन उसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए समावेशी स्थानों की वहां पर जगह नहीं है। तो वैसे एक शहर की नैतिक समस्याएं क्या होंगी, क्या नैतिक समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एथिकल इशूज की, जो पहला क्वेश्चन है, और शुरुआत करते हैं कहां से। हम अपनी बात को एक एक कर हम एथिकल इशू को पॉइंट करते जाएंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, मैंने पिछले भी एक प्रश्न में एथिकल इशू को डिफाइन किया था। एथिकल इशू आर दोज इशूज रिलेटेड टू एथिक्स एंड मोरालिटी वेयर देयर इज अ थ्रेट और वायलेशन ऑफ अ इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू और प्रिंसिपल। कोई ऐसा मानवीय मूल्य और सिद्धांत जब उसको चुनौती मिलती है किसी परिस्थिति के कारण, उसे ही नैतिक मुद्दा हम कहते हैं। नैतिक मुद्दे वैसे मुद्दे हैं जहां पर कि मानव मूल्यों को चुनौती मिलती है, मानव मूल्य के ह्रास का खतरा होता है। ठीक है, चलिए
तो अब इसमें एथिकल इश्यूज की हम बात करते हैं, शुरुआत से बात करेंगे। और यहाँ पर एक जो एथिकल इशू है वो तो यहीं से शुरू होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग अ सिटी इनटू वर्ल्ड क्लास फ्री ऑफ स्लम्स। तो अच्छी बात है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर शहर में स्लम्स हैं यानी कि पोवर्टी है, एंड वी नो दैट पोवर्टी इज एन एथिकल इशू। it somewhere now you see that there is a middle class who wants the city to be a world class city, but at the same time they want the slum dwellers to be cleared off without any proper rehabilitation or without any proper resettlement. So the ethical issue number 1 is that of inequality. Ethical issue of inequality is there. Ethical issue of poverty is there. So poverty or deprivation of basic facilities, असमानता है, गरीबी है। असमानता जहां की मनुष्य को एक दूसरे के असमान और एक दूसरे से मनुष्य को कमतर करती है, और दूसरी तरफ की गरीबी जो कि मनुष्य को बुनियादी सुविधाओं से और जीवन के विकास के लिए जो आवश्यक अवसर हैं उससे वंचित करती है। तो दोनों एथिकल इशू हैं, आप उसी में खोजते जाइए, आपको मिल जाएगा। नाउ अब फीडबैक कहां से मिला है? RWA से मिला है, और उन्होंने कॉरपोरेशन को कहा है कि भाई आप इसको खाली कराइए। नाउ सी व्हाट आर द अदर एथिकल इश्यूज। नाउ दे ऑर्डर्ड द डेमोलिशन ऑफ 20-year-old slum. Okay. And thousands of families live there. So slum located on a prime land, new business district, eyesore by the city elites and middle class residents. So the entire purpose, the purpose is of profitability. है ना? So the second ethical issue is, the ethical issue number 2 is profit motive. So this entire exercise is driven by profit motive. Exercise driven by profit motive, as the residents want the enhancement of property values when the slum will be cleared. झुग्गी हट जाएगी तो उनके property की value बढ़ जाएगी, and now this is driven by the sole purpose of motive without any human concern. इसमें कोई ह्यूमन कंसर्न नहीं है। एक तो दूसरा हो गया, वो एस्थेटिक्स की भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि एथिकल इशू नंबर 3 यहाँ पे उठता है कि एस्थेटिक्स का परसेप्शन जो है, एस्थेटिक्स का परसेप्शन वो कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि क्या शहर में केवल स्लम के इंक्रोचमेंट से एस्थेटिक प्रभावित होती है? क्या शहरों पर अनऑथराइज तरीके से गाड़ियां पार्क की हुई होती हैं? बड़े महानगरों में तो ये आम समस्या है, शहर पे अनऑथराइज्ड पार्किंग होती है। बड़े बड़े संस्थान वो जगहों को, रिलीजियस प्लेसेस वो सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण किए होते हैं। तो क्या उससे शहर की जो एस्थेटिक्स है वो प्रभावित नहीं होती? लोगों के मकान हमेशा, जो सार्वजनिक रास्ता है, सार्वजनिक सड़क है, उस पर आगे बढ़ कर लोगों के मकान बने होते हैं, बालकनीज निकली होती हैं, नाली पर सीढ़ियां बनी होती हैं। तो क्या ये सिटी एस्थेटिक्स का वायलेशन नहीं है? सो नाउ दिस एस्थेटिक्स इज बीइंग डिफाइंड बाय एन एलीट क्लास. ओके, सो द एथिकल इशू इज दैट इट इज एन elitistic approach, or we can say it is an elitist approach. So it is an elitist approach. It is an elitist approach towards अर्बन एस्थेटिक्स. ये अर्बन एस्थेटिक्स को लेकर एक एलिटिस्ट अप्रोच है. नाउ द एथिकल इशू वी कैन से विदाउट प्रायर नोटिस और एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल. नाउ दिस इज एथिकल इशू नंबर 5. यू कैन से दैट देयर इज वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए, सो दैट इज वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल और एस्टैब्लिश्ड procedure. At the same time, displacement of citizens without any rehabilitation, that is ethical issue number 6. कि उन्हें विस्थापित तो कर दिया गया लेकिन उन्हें कोई सेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन नहीं दिया गया. राइट टू शेल्टर इज अ बेसिक ह्यूमन राइट. जो आवास का अधिकार है वो एक बुनियादी मानव अधिकार है. Okay, so right to shelter is a basic human right and that has been violated, so that is an ethical issue. Now it has been said that residents were given only hour to evacuate, so it will also come under the ethical issue number 5 where there is violation of procedure. के अनुसार कम से कम उन्हें एक
रीजनेबल नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए खाली करने के लिए। डेमोलिशन एक्सरसाइज कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण ये गलत है। वहां पर झुग्गियां जो बस गई समय के साथ, उसको वहां पर से हटाया जाना एक कानूनी कार्य है, लेकिन उसमें जो प्रोसीजर्स हैं, जो उसमें रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको तो पालन अवश्य रूप से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब वहां पर एक रीजनेबल उनको नोटिस पीरियड दिया जाना था, नहीं दिया गया, दैट इज एन एथिकल इशू। नाउ living many without shelter or personal belongings or access to basic amenities. Okay, now this will come under this, the violation of right to shelter, है ना, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। At the same time, local media reported harrowing scenes of families sleeping on streets. Now there is a lack of empathy on the part of administration. क्योंकि आप रीजनेबल नोटिस पीरियड देंगे नहीं, एकाएक डेमोलिश कर देंगे तो लोगों के पास मौका मिलेगा नहीं, वो जाएं तो जाएं कहां, परिवारों को लेकर कहां जाएंगे, घर का सामान लेकर कहां जाएंगे, नोटिस पीरियड तो देना चाहिए ना। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, सड़कों पर सोएंगे। और इसमें तो एक वीडियो भी वायरल हो गया जहां एक गर्भवती महिला अधिकारियों से गुहार कर रही है कि मेरा घर मत तोड़िए। सो इट इज जस्ट लाइक इन ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर कि प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एथिकल इशू, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी। नाउ दिस इज एथिकल इशू नंबर 7, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। समानुभूति का अभाव है, संवेदनशीलता का अभाव है। नाउ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ कोर्स there is the violation of basic human rights to shelter, basic human rights for the rule of law. So all these are basic human rights. Kirti was not consulted, now tasked, so her conscience is troubled as she joined the civil service inspired by a vision of inclusive development. But here it itself mentions that lack of empathy and disregard for legal procedure that we have already included, वो हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो कीर्ति ने कहा कि कीर्ति की अंतरात्मा व्यथित हो गई है और वो इस चीज में लैक ऑफ एम्पैथी देख रही हैं, डिसरिगार्ड फॉर लीगल प्रोटोकॉल्स देख रही हैं, जो कि उनके वैल्यूज के साथ कंफ्लिक्ट करता है। तो ये भी एक एथिकल इशू है ना, ये भी एक एथिकल इशू है। अच्छा, ये भी अपने आप में एक एथिकल इशू है। फाइन, कंफ्लिक्ट विथ हर वैल्यूज। सो कंफ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज with the work culture, conflict of individual values with work culture is another ethical issue involved here. Now she visited locality, met residents, वो जाके लोगों से मिलती हैं, वहां जाकर लोगों की दुर्दशा देखती हैं। so plight of people is there and it must be heard. okay, so people है ना, जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी है, और यहां पर इससे ये हाईलाइट होता है कि उनका जो लाइवलीहुड है वो भी थ्रेट में है, लाइवलीहुड भी थ्रेट में है, तो वो भी एक एथिकल इशू है। नाउ देयर इज अ RWA which is backed by powerful real estate developer. It is pressurizing Kriti to complete the demolition swiftly. Now this is interference in official work. Now this is another ethical issue, that is interference in official duties. Interference in official duties, आप अधिकारी को दबाव नहीं बना सकते, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप माना जाता है। अच्छा, म्युनिसिपल कमिश्नर हैज हिंटेड दैट कंप्लायंस इज क्रूशियल फॉर हर करियर प्रोग्रेशन, सो दिस अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग। दिस इज अनदर एथिकल इशू। सो प्रेशर बाय सुपीरियर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैकमेलिंग। एक तो दबाव बना रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं कि आगे आपके करियर के लिए अच्छा होगा। So pressure by superior and blackmailing, that is again an ethical issue. Okay, so you can list out a number of ethical issues from the case itself. You need not to look for anywhere. अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें स्लम फ्री सिटी चाहिए, रैपिड एक्शन का वो मांग कर रहे हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन प्लान वेग हैं। सो लैक ऑफ अ क्लियर रिहेबिलिटेशन प्लान, दैट इज अनदर एथिकल इशू, लैक ऑफ अ क्लियर रिहेबिलिटेशन प्लान। सो दीज आर दी ethical issues involved in this case. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, कीर्ति को क्या चूज करना चाहिए टू एड्रेस द एथिकल कंफ्लिक्ट इन हर कंसाइंस। नाउ शी हैज ए ट्रबल्ड कंसाइंस एंड व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शी शुड चूज। क्या उन्हें कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहिए ताकि जो उनकी अंतरात्मा है उसमें जो एक नैतिक संघर्ष है उसका समाधान हो सके। ओके, सो वी विल राइट डाउन कोर्स ऑफ एक्शन
course of action to be taken by Kirti, to resolve ethical conflict of conscience, in her conscience. क्या रास्ता अपनाना चाहिए? सबसे पहले the first thing is Kirti should, as she is now in charge of overseeing the process, now she should ensure that a reasonable time period is provided, a reasonable notice period is provided for the residents, reasonable notice period to the residents. इससे क्या होगा, उनको खाली करने के लिए समय मिलेगा, सड़क पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ वो अपनी व्यवस्था कहीं करेंगे. ठीक है, तो ये जो रीजनेबल नोटिस पीरियड है ये उनको रेसिडेंट्स को देना पड़ेगा, ताकि उनके जो कंसाइंस में ये कन्फ्लिक्ट है कि एम्पैथी नहीं दिखाई गई, अब यहाँ समय दिया जाएगा तो एम्पैथी दिखाई जा रही है. दूसरी चीज है कि साथ ही साथ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो जो लीगल प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वो फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, है ना, लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज शी मस्ट इंश्योर adequate rehabilitation package for the slum dwellers, both phases, rehabilitation package for slum dwellers, ensure adequate rehabilitation package for slum dwellers. दोनों फेज में जो भी इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पैकेज सुनिश्चित करना ये कीर्ति का काम होगा, ताकि उनको लगे कि सिविल सेवक के रूप में उन्होंने अपनी जो दायित्व थी उसको पूरा कर दिया है. अच्छा, अब चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है, तो जब मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कोर्ट उसके ऊपर जो भी सुनवाई करती है उस हिसाब से वो एक्ट करें, है ना. बीइंग अ सिविल सर्वेंट शी हैज टू गो बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट. सो एक्टिंग as per the possible order, जो भी आने वाले समय में, acting as per the future order of the high court, तब तो फिर राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा ना. acting as per the future order of the high court, meanwhile following due process. तो जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करें. अच्छा, चौथी चीज ये है कि केवल रिहेबिलिटेशन पैकेज में हाउसिंग की बात ना हो, रिहेबिलिटेशन पैकेज में उनके लाइवलीहुड को भी इंश्योर करने की बात होनी चाहिए. जो स्लम डवेलर्स हैं उनका लाइवलीहुड भी इंश्योर होना चाहिए, और उनके बच्चों के लिए जो भी वहां से विस्थापित होंगे, शिक्षा की व्यवस्था हो, रिक्रिएशन की व्यवस्था हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए रिहेबिलिटेशन पैकेज डिजाइन करना चाहिए. सो लाइवलीहुड, एजुकेशन, स्किलिंग, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन इन माइंड. ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए. अच्छा, पांचवी चीज ये है कि एनजीओज के साथ मिलकर, स्लम रेसिडेंट्स के साथ मिलकर, जो वहां पर रह रहे हैं, स्लम रेसिडेंट्स के साथ मिलकर इस तरीके से अपना जो है एक जो साइट ऑफ रिलोकेशन है, जो साइट ऑफ रिलोकेशन होगा उनके लिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, और उनको भी प्रोसेस का पार्टिसिपेंट बनाना चाहिए, उनको भी प्रोसेस में भागीदारी उनकी रखनी चाहिए. तो इस तरीके से उनका कंसाइंस कहीं ना कहीं संतुष्ट होगा कि मैंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सपने को लेकर जो सिविल सेवा ज्वाइन की थी, मैं उस सपने को कहीं ना कहीं पूरा कर पा रही हूं, और जो मेरे ताकत में है, जो मेरी आधिकारिक शक्ति के अधीन है, मैं उसको कर पा रही हूं. नाउ what are the ethical problems with a world class city with no inclusive spaces for weaker sections? Now this is an ethically analytical question कि एक वर्ल्ड क्लास सिटी जिसमें कि वीकर सेक्शन के लिए कोई इंक्लूसिव स्पेसेस ना हो, उसमें क्या एथिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नाउ सी, एथिकल प्रॉब्लम्स इन अ वर्ल्ड क्लास सिटी
without inclusive spaces for without inclusive spaces for weaker sections. ऐसा नहीं है कि शहर में झुग्गियां होनी चाहिए और झुग्गियां कोई अच्छी चीज है. झुग्गियों में ना तो रहने वाले उससे खुश होते हैं, उनको हर तरीके से कठिनाई होती है रहने की. कोई सेफ सिक्योर हाउसिंग नहीं है उनके पास, ना तो कोई रेगुलर सप्लाई ऑफ बेसिक अमेनिटीज है. सड़कें ठीक नहीं होती, बिजली की अव्यवस्था होती है, पानी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता घरों में, दूर जाकर टैंकर से लाते हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, तमाम प्रकार के छोटे बड़े अपराध वहां पर आपको पाए जा सकते हैं. तो कहने का अर्थ है कि झुग्गियां अच्छी चीज नहीं है, शहर की सजावट नहीं है, पर झुग्गियों को हटाने का और उनमें जो लोग रह रहे हैं उनके पुनर्वास का एक व्यवस्थित तरीका, एक कानूनी संवैधानिक तरीका होना चाहिए. बस केवल इसलिए नहीं कि गरीब अच्छे नहीं दिखते इसलिए इनको हटाओ शहर से. झुग्गियां अच्छी नहीं दिखती, आखिर लोग कहां जाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए. ठीक है, अब है कि भाई एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सिटी हमें बनाना है, और लेकिन क्या उसमें इंक्लूसिव स्पेसेस नहीं होनी चाहिए? झुग्गियां इंक्लूसिव स्पेसेस नहीं है, पर वीकर सेक्शंस के लिए भी तो हाउसिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए. गरीब लोग भी शहर में रह सके सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, मानवाधिकारों की पूर्ति के साथ. एक वर्ल्ड क्लास सिटी जिसमें कि समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी इनकम ग्रुप के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे तो वो कैसा डिस्टॉर्टेड सिटी होगा. सो द एथिकल प्रॉब्लम व्हाट विल अराइज इज दैट देयर विल बी lack of cohesion in society. There will be lack of cohesion and concern towards each other. जब इंक्लूसिव स्पेसेस ही नहीं होंगे तो समाज में एकजुटता नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति चिंता नहीं होगी, किसी को किसी के बारे में समस्या से कोई अवगत ही नहीं होगा, किस वर्ग की क्या समस्या है. दूसरी चीज है कि ये डाइवर्सिटी के और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी. भारत एक विविधता में एकता का देश है, समावेशी वर्ल्ड क्लास शहरों में भी समावेशी इलाके होने चाहिए जहां पर कि हर प्रकार के लोगों के लिए रहने सहने और उचित और एफोर्डेबल हैबिटेट की व्यवस्था हो. सो देयर विल बी लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी. द एथिकल प्रॉब्लम विल बी decline in diversity and democracy. The third thing is emergence of elitist culture. अगर वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम पर हम वीकर सेक्शन को एक्सक्लूड करेंगे तो किस तरीके की संस्कृति डेवलप होगी? एमरजेंस ऑफ एलिटिस्ट कल्चर, एक एलिटिस्ट कल्चर विकसित होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एथिकल प्रॉब्लम कुड बी दैट स्टीरियोटाइपिंग ऑफ पुअर एंड द वीकर सेक्शन. अगर ये मानसिकता रखेंगे कि वर्ल्ड क्लास में गरीब होने ही नहीं चाहिए, उनको बाहर रखो पब्लिक व्यू से, बाहर से लोग आएंगे वो क्या देख लेंगे, तो कहने का मतलब है कि इट विल लीड टू स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड फर्दर डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स देम. और इससे क्या होगा कि उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और बढ़ता जाएगा. सो इट विल फर्दर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम. नाउ द नेक्स्ट एथिकल प्रॉब्लम इज दैट in the name of world class cities, when we don't have those inclusive spaces, so there will not be equitable distribution of resources in the society, or the benefit of development will not reach to every member of the society. तो कहने का अर्थ ये है कि समाज के संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकेगा. क्या वर्ल्ड क्लास सिटीज बनाने में गरीबों के टैक्स का पैसा नहीं जाता? क्या गरीबों का उसमें जो वीकर सेक्शंस हैं, लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वही तो शहर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन जब उनमें रहने की बात आती है तो वो सपना भी नहीं देख सकते. कोविड-19 के समय हमने देखा था ना कैसे उनको खाली करा के यहाँ से भेजा गया था. पैदल पैदल सब अपने गृह राज्य गए थे और रास्ते में भी कई लोग मर गए जिसका आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो कैसा एक समाज बनेगा वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम पर? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकेगा और जो गैप है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में वो फर्दर बढ़ता जाएगा. सो दीज आर द एथिकल प्रॉब्लम्स विद अ वर्ल्ड क्लास सिटी without inclusive spaces for weaker sections. And now how we can conclude?
हम कैसे कंक्लूड करेंगे? बात डाइवर्सिटी की है, इनइक्वालिटी की है, तो हम ये कहेंगे कि हम शहरों में विविधता को इंक्लूडिंग इनकम डाइवर्सिटी, इनकम गैप, उसको एक्नॉलेज करते हुए वीकर सेक्शंस के लिए अफोर्डेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं और एक समतावादी दृष्टिकोण हम विकसित करें समाज के प्रति। एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखें हम सिटीज के डेवलपमेंट का। अर्बन डेवलपमेंट को लेके एक ह्यूमन सेंट्रिक व्यू हमारा होना चाहिए दैट मस्ट इंक्लूड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अक्रॉस कास्ट, इनकम और कम्युनिटी लाइंस। इस तरीके से हम अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चर्चा हमारे यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज के जीएस पेपर 4 की, जो क्रॉनिकल आईएएस के द्वारा आपके हित में लाया गया था। हमें उम्मीद है कि हमारे इन कार्यक्रमों का और वीडियो लेक्चर्स का आप लाभ उठा रहे होंगे, आपको इससे फायदा हो रहा होगा और आप अपने जो भी संदेश हैं, जो टिप्पणियां हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आप सभी का इस कक्षा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।